عاشقوں میں ایک نام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی آتا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت کلمہ نہیں پڑھا تھا، جب آپ دامن اسلام سے وابستہ نہیں ہوئے تھے، اس دور کی تاریخ آپ اٹھا کر کے دیکھیے۔ مکۃ المکرمہ کی سرزمین ہے، ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام گزر کر جا رہے ہیں، مذہب اسلام کا ابتدائی دور ہے۔ اچانک سے میرے مصطفیٰ کے کان میں آہ کی آواز آتی ہے، آواز کا پہنچنا تھا۔ میرے نبی واپس پلٹتے ہیں، جدھر سے آہ کی آواز آ رہی تھی ادھر کو میرے نبی کے قدمان مبارک چل پڑے۔ جس دروازے سے آہ کی آواز آ رہی تھی میرے مصطفیٰ نے دستک دی ہے، اندر سے آواز آتی ہے، کون ہے؟ میرے نبی نے فرمایا دروازہ کھولو، میں اندر آنا چاہتا ہوں۔ حضرت بلال نے کہا دروازہ کھلا ہوا ہے، آپ اندر آ سکتے ہیں۔ میرے نبی جب اندر داخل ہوئے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک غلام ہے جس کے ہونٹ موٹے موٹے ہیں، جس کا چہرہ بھی کالا ہے، جس کی رنگت بھی کالی ہے، اس کے جسم میں شدید مرض ہے، اس کے جسم میں بخار ہے، اور اس کے ہاتھ میں چکی چلانے کا سسٹم ہے۔ وہ چکی چلانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن چکی چلا نہیں پا رہا ہے، جسم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ چکی کو چلا سکے۔ عزیزان وقار، میرے مصطفیٰ نے پوچھا تھا او نوجوان ذرا اپنا نام تو بتا دے۔ اس نے کہا میرا نام بلال حبشی ہے۔ جب میرے مصطفیٰ نے حضرت بلال کی اس حالت کو دیکھا ہے، ابھی حضرت بلال نے کلمہ بھی نہیں پڑھا ہے، میرے نبی کے دامن سے وابستہ بھی نہیں ہوئی ہے، میرے مصطفیٰ نے اپنی مزمل والی چادر اتاری ہے، اور اتارنے کے بعد حضرت بلال سے کہا تھا بلال تم ایک کام کرو، اس چادر کو نیچے رکھو اور اس چادر پہ لیٹ جاؤ۔ وہ کون سی چادر تھی؟ وہ مزمل والی وہی چادر تھی جس کی بلائے لینے کے لیے آسمان کے فرشتے تڑپ رہے ہوں، جس کی بلائے لینے کے لیے جنت کی حوریں بے تاب ہو رہی ہوں۔ اسی مزمل والی چادر کو میرے مصطفیٰ نے تکیہ کی طرح بنایا اور بلال کو کہا کہ تم آرام کرو۔ حضرت بلال نے کہا تھا او آنے والے ذرا اپنا نام تو بتا دے۔ آج تک مکے میں کوئی ایسا نہ ہوا جو کسی کے درد میں شریک ہوتا ہو، تم پہلے انسان ہو جو کسی کے درد میں شریک ہو رہے ہو۔ میرے مصطفیٰ نے کہا تھا یہ سب بعد میں بتاؤں گا، تم آرام کرو۔ حضرت بلال نے کہا تھا اگر میں آرام کرنے لگا تو اس کام کو کون کرے گا، اور اگر یہ کام نہ ہوا تو میرا آقا امیہ بن خلف بڑا ظالم انسان ہے، وہ آئے گا اور دیکھے گا کہ کام نہیں ہوا ہے تو مجھ پر بڑا ظلم و ستم کرے گا۔ میرے مصطفیٰ نے کہا تھا بلال تم ٹینشن نہ لو، اطمینان سے آرام کرو، آج کے دن یہ چکی میں چلاؤں گا۔ میرے مصطفیٰ نے جب چکی چلانے کے لیے اپنے ہاتھوں کو بڑھایا ہے، اتنے میں حضرت جبرائیل امی تشریف لاتے ہیں۔ حضرت جبرائیل نے آ کر کہا تھا یا رسول اللہ غلام کے ہوتے ہوئے آقا کام کرے یہ اچھا نہیں لگتا ہے، یا رسول اللہ آپ پیچھے ہٹ جائیے، آج جبرائیل چکی چلائے گا۔ میرے مصطفیٰ نے کہا تھا جبرائیل پیچھے ہٹ جا، آج صرف چکی کے پاٹ نہیں گھمانے ہیں بلکہ کسی کے دل کو بھی محمد کی طرف گھمانا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے پورا کام کیا ہے، جب پورا کام مکمل ہو گیا میرے نبی واپس جانے لگے۔ حضرت بلال میرے نبی کا چہرہ دیکھ کر دیوانے ہو گئے تھے۔ حضرت بلال نے پوچھا وہ جانے والے ذرا اپنا نام تو بتاتے جا، اگر نام نہیں بتا سکتا تو کس قبیلے کا رہنے والا ہے یہ تو کم سے کم بتا کر کے جا۔ میرے مصطفیٰ نے کہا تھا بلال آج نہیں پھر کل آؤں گا اور تیرا کام کر کے جاؤں گا۔ میرے مصطفیٰ پھر کل آئے ہیں، حضرت بلال کا پورا کام کیا ہے۔ آج اگر تھوڑی سی دولت مل جاتی ہے، آج اگر تھوڑا سا عہدہ مل جاتا ہے تو لوگ اپنی اوقات کو بھول جایا کرتے ہیں۔ ذرا اپنے نبی کی تاریخ پڑھ کر کے دیکھ لینا، میرے مصطفیٰ سے افضل نہ اس کائنات میں کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ قیامت تک کوئی پیدا ہو سکتا ہے۔ میرے نبی نے یہ پیغام ہمیں دیا ہے کہ قیامت تک آنے والی امتیوں اگر تم کتنے ہی بڑے عہدے پر پہنچ جاؤ، اگر کوئی پریشانی میں مبتلا ہے تو اس کی پریشانی میں شریک ہو جانا، اس کی پریشانی میں شریک تم ادھر ہوگے، ادھر سے تمہارے آقا کی عنایتیں تم پر ہونے لگے گی۔ ہمیں تو کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ عزیزان ملت اسلامیہ
दूसरे दिन मेरे नबी तशरीफ़ लाए हैं। हज़रत बिलाल चेहरा देखते जा रहे हैं, कभी मेरे नबी की जुल्फ़ मुबारक को देखे, कभी मेरे नबी की वो आंखें देखे, कभी मेरे नबी के लबे मुबारक को देखे, जिसके बारे में बरेली के इमाम ने कहा था, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियाँ, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब हज़रत बिलाल का दिल काबू में नहीं रह रहा है। हज़रत बिलाल देखते जा रहे हैं, हज़रत बिलाल मुस्कुराते जा रहे हैं। जब दूसरे दिन मेरे नबी ने पूरा काम किया है और काम करने के बाद जब वापस जाने लगे तो हज़रत बिलाल ने कहा था, वो आने वाले 2 दिन हो गए तूने अपना नाम नहीं बताया है। अपना नाम ना बताना ठीक है, कम से कम ये तो बता दे कि किस कबीले के रहने वाला है। मेरे मुस्तफ़ा ने कहा था, बिलाल घबराने की बात नहीं है, कल फिर आऊँगा और तेरा काम करके जाऊँगा, और कल मैं जब आऊँगा तो अपना नाम भी बता करके जाऊँगा। जब तीसरा दिन आया है, मेरे मुस्तफ़ा ने बिलाल का पूरा काम किया है। काम करने के बाद मेरे मुस्तफ़ा जब वापस जाने लगे तो हज़रत बिलाल ने कदम मुबारक को पकड़ा है और पकड़ने के बाद कहा था कि आज अगर आपने अपना नाम नहीं बताया तो आपका नाम जाने बगैर बिलाल भी आपको जाने नहीं देगा। जब इतना हज़रत बिलाल ने कहा था तो मेरे नबी ने कहा था, बिलाल अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुझे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है, मैं अल्लाह का आखिरी नबी बनाकर इस दुनिया में भेजा गया हूँ। जब हज़रत बिलाल ने इतना सुना है, कदमों में आए और आने के बाद कहा था, या रसूल अल्लाह अब ताखीर ना कीजिए, हमें कलमा पढ़ाइए और कलमा पढ़ाकर दाखिल इस्लाम कीजिए। अरे जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, अरे लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हज़रत बिलाल ने कलमा पढ़ा। जब हज़रत बिलाल दाखिल इस्लाम हो गए, मेरे मुस्तफ़ा ने कहा, बिलाल अभी मुसलमानों की तादाद कम है, ये कुफ़ार, ये जालिम, अगर किसी को पता चल जाता था कि किसी ने कलमा पढ़ लिया है तो उस पर बड़ा जुल्म सितम किया जाता था, मुसलमानों को बड़ा सताया जाता था, मुसलमानों को मारा जाता था। मेरे मुस्तफ़ा ने कहा, बिलाल तुमने कलमा पढ़ लिया है लेकिन अपने ईमान को छुपा कर रखना, अपने इस्लाम को छुपा कर रखना। हज़रत बिलाल ने कहा था, या रसूल अल्लाह कोशिश करूँगा। हज़रत बिलाल ने 1 दिन छुपाया, हज़रत बिलाल ने 2 दिन छुपाया, लेकिन सच्चा इश्क वही होता है जो सर चढ़कर बोला करता है। एक दिन हज़रत बिलाल अपने आका उमैया बिन खलफ के ऊँट बैठकर जंगल में चरा रहे थे। उमैया बिन खलफ गुजर कर जा रहा था। उमैया बिन खलफ ने सुना कि बिलाल जो है कि मोहम्मद का नाम ले रहा है, या रसूल कह रहा है। बिलाल तो या अल्लाह की सदाएँ बुलंद कर रहा है। उमैया बिन खलफ ने जैसे ही इतना सुना, उमैया बिन खलफ के तेवर बदल गए, दौड़कर हज़रत बिलाल के पास आया और हज़रत बिलाल के गिरेबान को पकड़ने के बाद कहा था, बिलाल तूने किसका नाम ले लिया है, तूने किसका नाम अपनी ज़ुबान पे लाया है। हज़रत बिलाल ने कहा था, उमैया जब तुमने सुन ही लिया है तो पूरी बात भी सुनता जा। मैंने कलमा पढ़ लिया है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का, अब जान देना गवारा है लेकिन मोहम्मद का दिया हुआ ईमान देना गवारा नहीं है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जब उमैया ने इतना सुना है, हज़रत बिलाल को मारता जा रहा है लेकिन इश्क है कि कम होने का नाम नहीं ले रहा है, मोहब्बत और बढ़ती जा रही है। उमैया मारता मारता थक गया, हज़रत बिलाल का इश्क बढ़ता चला गया। उमैया जब मार मार के परेशान हो गया तो बिलाल से कहा था, बिलाल तुझ पर मार का असर क्यों नहीं होता है। हज़रत बिलाल ने कहा था, उमैया कान खोल करके सुन ले, तेरी हुकूमत बिलाल के जिस्म पर चला करती है लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की हुकूमत बिलाल के दिल पर चला करती है। जान देना गवारा है लेकिन मोहम्मद का दिया हुआ ईमान देना गवारा नहीं है। जब उमैया ने इतना सुना, शाम के वक्त में बिलाल हबशी को बुलाया है और अपने तख्त के पाए के नीचे हज़रत बिलाल का हाथ दबाया है और तख्त पे चढ़ करके सो गया। उमैया ने कहा था, आज देखता हूँ तेरे इश्क का अंदाजा आज लग जाएगा, तू कितनी मोहब्बत करता है। तुझे ये दर्द जो आज मैं दे रहा हूँ, इस दर्द के बाद तू मोहम्मद का नाम कभी लेना गवारा नहीं करेगा। हज़रत बिलाल के हाथ में पाया जब चुभा है, हज़रत बिलाल का हाथ फटकर खून से लहूलुहान हो गया। जब लहूलुहान हुआ हज़रत बिलाल का हाथ, हज़रत बिलाल हबशी को तकलीफ हुई है। जब सुबह का सवेरा नमूदार हुआ है, उमैया बिन खलफ ने अपनी आंखें खोली है तो पहली नजर बिलाल के चेहरे पर पड़ी है। जब हज़रत बिलाल के चेहरे की तरफ उमैया बिन खलफ ने देखा था तो देख करके पूछा था, बिलाल तू किस मिट्टी का बना हुआ है, तेरे चेहरे पर कोई दर्द के आसार क्यों जाहिर नहीं
शहीद हो रहे हैं, तेरा हाथ खून से लहूलुहान हो गया है, तेरा हाथ खून से फट करके जो है कि तरबतर हो गया है, लेकिन इसके बावजूद तू रोता क्यों नहीं है? क्या तुझे दर्द नहीं होता है? तो हजरत बिलाल ने कहा था, उमैया कान खोल करके सुन ले, जब तूने मेरे हाथ को अपने तख्त के पाए के नीचे दबाया था तो बिलाल को बहुत तकलीफ हुई थी। उमैया ने कहा तो फिर रोता क्यों नहीं है? तो हजरत बिलाल ने कहा था, उमैया अरे तूने मेरे आका के चेहरे को देखा नहीं है, अगर तू मेरे मुस्तफा के जलवों को देख लेता तो ऐसी बात हरगिज ना करता। उमैया ने पूछा था कहना क्या चाहता है? तो हजरत बिलाल ने कहा था कि जब बिलाल के हाथ में तुम्हारा पाया चुभा था तो बिलाल को तकलीफ हुई थी, और जब बिलाल को तकलीफ हुई थी तो मैंने अपने आका को सदा दे दी थी, मैंने अपने आका को पुकारा था। मैंने जैसे ही अपने आका को पुकारना था कि आका का जलवा नजरों के सामने आ गया, और जब आका का जलवा नजरों के सामने आ गया तो बिलाल जलवों में खो गया था, और रात कैसे गुजर गई बिलाल को कुछ भी पता ना चला। इसी को जब बरेली के इमाम ने देखा था तो इस अंदाज में कहा था कि जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें, अरे जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये मुसलमानों की तारीख रही है। मुसलमानों को हर दौर में परेशान किया गया है, मुसलमानों को टारगेट किया गया है, लेकिन किसी भी दौर में मुसलमान ने ईमान का सौदा नहीं किया है। मुसलमान मरना गवारा कर सकता है, लेकिन ईमान और इस्लाम के साथ समझौता करना पड़े, यह मुसलमान कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा। हम मानते हैं कि इस दौर में हमें परेशान किया जा रहा है, हम ये मानते हैं इस दौर में मुसलमानों की गर्दनों को काटा जा रहा है, मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। परेशान ये ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन मुसलमानों का खात्मा करना इनके बस की बात नहीं है, इस्लाम को मिटाना इनके बस की बात नहीं है। हम तो ये सोचते हैं कि अगर तकलीफ मदीने वाले मुस्तफ़ा के नाम पे बर्दाश्त करनी पड़ जाए, शरीयत मुस्तफ़ा पर अगर मुसीबतों का सामना करना पड़े तो सामना कर लेंगे, और खुशी खुशी ये कहेंगे अपनी ज़ुबान से, या रसूल अल्लाह आज हम यहाँ मुसीबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, कल मैदान महशर में हमें ना भूल जाइएगा, अपने इस ग़ुलाम को भी याद कर लीजिएगा। अगर मैदान महशर में मुस्तफ़ा जाने रहमत ने उंगली का इशारा कर दिया, ज़िंदगी कामयाब हो जाएगी, हश्र भी कामयाब। इसलिए कोशिश करें अपना एक मिजाज बनाएं। आपको हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हो की तारीख़ सुनने को बहुत मिली होगी, लेकिन एक बात आज मैं हज़रत बिलाल के हवाले से ये भी बता दूं, जब हज़रत बिलाल को इतना जुल्म सितम, हज़रत बिलाल को जब इतना तड़पाया गया, एक दिन हज़रत बिलाल को मारा जा रहा था, रास्ते में हज़रत बिलाल को घसीटा जा रहा था, अंगारे और कोयलों को जलाकर हज़रत बिलाल हबशी को उस पर लेटा दिया जाता। किताबों से ये बात पता चलती है कि जब अंगारों पर हज़रत बिलाल हबशी को लेटाया जाता था, हज़रत बिलाल के चर्बी पिघल कर अंगारों को बुझा दिया करते थे, लेकिन जो इश्क हज़रत बिलाल के सीने में नबी के लिए पैदा हो गया था वो इश्क बुझने का नाम नहीं ले रहा था। हज़रत बिलाल को मारा जा रहा था, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो गुज़र कर जा रहे थे। हज़रत बिलाल पर होने वाले जुल्म सितम को जब हज़रत अबू बकर ने देखा तो हज़रत अबू बकर का सीना फटने को आया। हज़रत अबू बकर नबी की बारगाह में आए, आने के बाद कहा था, या रसूल अल्लाह आज मैं रास्ते से गुजर कर आ रहा था, मैंने देखा बिलाल को बड़ा सताया जा रहा है, बिलाल को बहुत परेशान किया जा रहा है, बिलाल को कोयलों पर लिटाया जाता है, बिलाल को घसीटा जाता है, बिलाल के सीने पे पत्थर रख दिया जाता है, तपते हुए रेत पर बिलाल को फेंक दिया जाता है। बिलाल के इस जुल्म सितम को मैंने देखा तो देखने के बाद मेरा सीना पानी पानी हो गया। मेरे मुस्तफ़ा ने जब इतना सुना तो मेरे नबी ने कहा था, अबू बकर ये बताओ मेरा बिलाल क्या कह रहा था, मेरा बिलाल क्या कह रहा था। जब इतना हज़रत अबू बकर ने सुना तो हज़रत अबू बकर ने कहा था, या रसूल अल्लाह वो तो आप ही का नाम ले रहा था, वो या रसूल कह रहा था। जब मेरे मुस्तफ़ा ने इतना सुना, मेरे मुस्तफ़ा ने कहा था, काश कोई बिलाल को ख़रीद कर आज़ाद कर देता। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने ये सुना तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक तो वो थे जिन्होंने कहा था, या रसूल अल्लाह अबू बकर की जान भी आपकी है, अबू बकर का सब कुछ आपका है, अबू बकर की दौलत आपकी है। हज़रत अबू बकर ने जब इतना सुना, हज़रत अबू बकर वापस चलने लगे। हज़रत अबू बकर से मेरे मुस्तफ़ा ने पूछा था, अबू बकर कहाँ जा रहे हो। हज़रत अबू बकर ने कहा, या रसूल अल्लाह अभी तो आपने कहा काश कोई बिलाल को ख़रीद कर आज़ाद कर देता, जा रहा हूँ आज बिलाल का सौदा करूँगा, बिलाल को आज़ाद करके लाऊँगा। हज़रत अबू बकर से
से मेरे मुस्तफ़ा ने कहा कि आधा माल उसमें मेरा भी शामिल कर लेना। हज़रत अबू बकर ने कहा या रसूल अल्लाह, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? अबू बकर की जान पर भी आपकी हुकूमत चला करती है, अबू बकर की दौलत पर भी आप ही की हुकूमत है, जो मेरी दौलत है वो आपके कदमों में कुर्बान है या रसूल अल्लाह। हज़रत अबू बकर चले हैं, जहाँ पर हज़रत बिलाल को तड़पाया जा रहा था वहाँ पर हज़रत अबू बकर आए हैं। आने के बाद उमैया बिन खलफ से कहा था अबू बकर ने, ऐ उमैया ये बता क्या तू बिलाल को बेचेगा? उमैया बिन खलफ ने कहा था कैसी बात कर रहा है अबू बकर, इसको कौन खरीदेगा? न इसका चेहरा खूबसूरत है, न इसकी रंगत खूबसूरत है, इसके होंठ मोटे मोटे हैं। अरब में काले रंग के गुलामों की कोई कीमत नहीं हुआ करती थी, कीमत उन्हीं गुलामों की हुआ करती थी जिसका चेहरा खूबसूरत हुआ करता था। हज़रत अबू बकर ने कहा वो बातें तू बाद में बताना, ये बता बेचेगा कि नहीं बेचेगा? हज़रत अबू बकर ने जब इतना कहा, उमैया ने कहा था हाँ बेचने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन इसे खरीदेगा कौन? हज़रत अबू बकर ने कहा कि मैं इसे खरीदूंगा, तू इसकी कीमत बता कितनी कीमत में बिलाल को मेरे हवाले करेगा? उमैया ने कहा कि 100 दिरहम में मैं इसको तेरे हवाले करने को तैयार हूँ। हज़रत अबू बकर ने कहा ठीक है 100 दिरहम देने को मैं तैयार हो गया। खुद भी अबू बकर कैसे तैयार हो गए? उमैया बिन खलफ के इरादे बदल गए। उमैया ने कहा कि 100 में नहीं बल्कि इतना चांदी लूंगा, इतनी चांदी लूंगा, इतना सोना लूंगा, उसके बाद इसको मैं तेरे हवाले करूंगा। हज़रत अबू बकर ने कहा कि ठीक है मैं उतनी दौलत देने के लिए तैयार हूँ। उमैया सोचने लगा बात लगता है कि कुछ ना कुछ बात तो ज़रूर है। उमैया फिर अपनी बात को बदलता है। उमैया ने कहा कि अबू बकर ऐसे नहीं बेचूंगा, तुम्हारा जो ये गोरे रंग का गुलाम है इसको भी देना पड़ेगा और इतना सोना देना पड़ेगा, इतनी चांदी देनी पड़ेगी, तब बिलाल को तेरे हवाले करूंगा। हज़रत अबू बकर ने कहा कि ठीक है ये दौलत तुम्हारी हुई, ये गोरे रंग का गुलाम भी तुम्हारा हुआ, अब ला बिलाल को मेरे हवाले कर दे। जब हज़रत अबू बकर ने बिलाल का हाथ पकड़ा है और हाथ पकड़ कर लेकर वापस जाने लगे तो उमैया ने पीछे से हंस करके ये कहा था, अबू बकर मैं समझता था कि तुमसे होशियार ताजिर कोई भी नहीं है, तुम किसी सौदे में नुकसान नहीं बर्दाश्त कर सकते हो, तुम घाटा नहीं खा सकते हो, लेकिन मुझे आज पता चला है कि तुमसे बड़ा बेवकूफ ताजिर कोई नहीं है। हज़रत अबू बकर ने कहा था उमैया कहना क्या चाहता है? तो उमैया बिन खलफ ने कहा था कि तू जो ये गोरे रंग का गुलाम भी मुझे दिया है, इतनी दौलत भी दी है, और ये जो है कि काले रंग के गुलाम को लेकर के जा रहे हो, इससे तुम्हारी बेवकूफ़ी साबित नहीं होती है तो और क्या होती है? हज़रत अबू बकर ने कहा था उमैया कान खोल करके सुन ले, अरे बिलाल की कीमत तूने आज बहुत कम लगाई है, अगर बिलाल की कीमत अबू बकर की जान से भी लगा देता तो अबू बकर अपनी जान भी दे देता, लेकिन बिलाल को आजाद करके लेकर के जाता। मैं मानता हूं बिलाल का चेहरा खूबसूरत नहीं है, मैं मानता हूं बिलाल के होंठ मोटे मोटे हैं, लेकिन बिलाल को मेरे मुस्तफा ने पसंद कर लिया है, और जिसको मेरे नबी ने पसंद कर लिया हो अबू बकर जान भी दे सकता है लेकिन उसको अपना बना करके रहेगा। इसी को जब किसी शायर ने देखा था तो इस अंदाज में कहा था कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हज़रत अबू बकर ने कहा कि अबू बकर की जान से भी आज कीमत लगाता बिलाल की तो अबू बकर जान देकर बिलाल को खरीद कर लेकर जाता। हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हो को लेकर जब हज़रत अबू बकर वापस जाने लगे, हज़रत बिलाल के जिस्म में इतनी ताकत नहीं थी कि हज़रत बिलाल चल करके जा सकते वहाँ तक। हज़रत बिलाल हबशी को दो लोगों ने पकड़ा, एक तरफ हज़रत अबू बकर ने पकड़ा है एक, और दूसरी तरफ एक दूसरे सहाबी रसूल ने, और दोनों पकड़ करके नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में लेकर के पहुँचे। हज़रत बिलाल के पैर में इतनी ताकत नहीं थी कि हज़रत बिलाल चल कर जा सकते, इतनी मुसीबतें बर्दाश्त कर ली। हमने तो ये सोचा कि इस्लाम में हम पैदा हुए बस काफ़ी है, इस्लाम को आप पढ़ें तब आपको पता चलेगा कि मज़हब इस्लाम हम तक कैसे पहुंचा है। हज़रत बिलाल जब पहुँचे तो मेरे मुस्तफ़ा ने इस तरह अपने बाजू को फैलाया और फैलाने के बाद कहा बिलाल आ मेरे सीने से लग जा, आ मेरे सीने से लग जा। हज़रत बिलाल और आगे बढ़े, जहाँ पर मेरे मुस्तफ़ा का वो जो बिस्तर होता है जो बादशाहों को बैठने के लिए जो बिछाया जाता है, जिस जगह पर मेरे नबी का वो बिछा हुआ था वहीं पर मेरे मुस्तफ़ा जलवागर थे। हज़रत बिलाल जब
वहाँ पे पहुँचते हैं, जब बिस्तर की हद आती है हज़रत बिलाल के कदम रुक जाते हैं। हज़रत बिलाल के जहन में ये बात चल रही थी कि जो बादशाह होते हैं वो ग़ुलामों को अपने बिस्तर पे नहीं चढ़ने दिया करते, ग़ुलामों को अपने बिस्तर के करीब नहीं आने देते हैं। हज़रत बिलाल ठहर गए। मेरे मुस्तफ़ा ने पूछा, बिलाल रुक क्यों गया? आ मेरे सीने से लग जा, आ मेरे सीने से लग जा। जब इतना हज़रत बिलाल ने सुना है, हज़रत बिलाल हबशी दौड़ करके गए हैं मुस्तफ़ा के सीने मुबारक से। जब हज़रत बिलाल का सीना लगा है उस वक्त हज़रत बिलाल की आंखें अश्कबार हुई। उस वक्त बिलाल हबशी से ये सवाल किया गया, बिलाल ये तो बता, जब तू मुस्तफ़ा के सीने से लगा था उस वक्त तुझे कैसा महसूस हो रहा था? तो हज़रत बिलाल ने ये जवाब दिया था, वो ज़माने वालों कान खोल करके सुन लो, जब मैं मुस्तफ़ा के सीने से लगा था, जब मुस्तफ़ा ने अपने सीने से मुझे लगाया था तो मक्के के सारे दुख दर्द बिलाल भूल गया था, मुस्तफ़ा के जलवों में खो गया था। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को उसके बाद मेरे मुस्तफ़ा ने कहा, बिलाल अब तुम्हें अगर जाना चाहते हो तो तुम कहीं जा सकते हो, तुम आज़ाद हो आज के बाद। हज़रत बिलाल ने कहा था, या रसूल अल्लाह आपने आज़ाद करवाया है, अब ये ज़िंदगी जब तक बाकी आपके कदमों में कुर्बान की जाएगी, आपके कदमों में गुजारूंगा या रसूल अल्लाह। अब बिलाल जाएगा भी तो कहाँ जाएगा आपको छोड़कर। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब इतना कहा, मेरे मुस्तफ़ा ने अपना मुअज्जिन बना दिया, मुअज्जिन रसूल हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कौन नहीं जानता इनको? मुअज्जिन बनना भी कोई इतना आसान नहीं है, ये इश्क नहीं आसान, मुश्किल इसे पाना है। बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। अज़ीज़ान वक़ार, हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूरी ज़िंदगी अज़ान देते रहे, लेकिन एक वक्त वो वक्त भी आया जब मेरे नबी इस दुनिया से ज़ाहिरी तौर पर पर्दा फरमा गए। जब मेरे मुस्तफ़ा इस दुनिया को छोड़ कर चले गए, हज़रत बिलाल हबशी मदीने की गलियों में रोया करते थे, मदीने की गलियों में तलाश किया करते थे और लोगों से पूछा करते थे, वो लोगों ये तो बताओ मेरे नबी कहाँ मिलेंगे, मेरे मुस्तफ़ा कहाँ मिलेंगे, मेरे नबी से मुलाकात कहाँ होगी। हज़रत बिलाल गलियों में टहला करते। एक दिन हज़रत बिलाल ने ये दिल से पूछा कि जिसके लिए मदीने में बिलाल ज़िंदा रहा करता था, जिसके चेहरे को देखकर बिलाल ज़िंदगी गुजारा करता था, जब अब वही नहीं रहा तो अब मदीने में रहने का कोई काम नहीं है। हज़रत बिलाल ने अपना सामान तैयार किया। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हबशा तशरीफ़ ले गए। जब आप हबशा में चले गए, कुछ ज़माना गुजरा। एक दिन हज़रत बिलाल सो रहे थे, मेरे मुस्तफ़ा ख्वाब में तशरीफ़ लाए और लाने के बाद कहा था, बिलाल तूने मेरा मदीना क्यों छोड़ दिया, तूने मेरा मदीना क्यों छोड़ दिया। जब मेरे मुस्तफ़ा ने इतना कहा है ख्वाब में आकर, हज़रत बिलाल की आँख खुली है। हज़रत बिलाल ने सुबह होने का इंतज़ार नहीं किया, उसी वक्त अपना सामान तैयार किया और हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सफ़र कर बैठे मदीने की तरफ। जब मदीने में हज़रत बिलाल तशरीफ़ लाए और आने के बाद गुंबद खज़रा के करीब आए, आने के बाद रोने लगे, बैठ कर के आँखों से आंसू बहाने लगे और रो कर कहने लगे, या रसूल अल्लाह बिलाल को तो बुला लिया लेकिन आप सामने नहीं आ रहे हैं, ग़ुलाम तो आ गया है, आप कब सामने तशरीफ़ लाएंगे, ग़ुलाम को बुलाकर ऐसा तो नहीं किया करते। इतना ये कह ही रहे थे कि लोगों में ये बातें होने लगी कि मुअज्जिन रसूल बिलाल हबशी फिर से वापस लौट आए हैं, बिलाल हबशी फिर से वापस लौट आए हैं। जब लोगों में ये बातें होने लगी, सारे लोगों का हुजूम जमा होने लगा। देखते ही देखते थोड़ी देर में तादाद जो है जमा हो गई। जब काफ़ी तादाद में लोग जमा हो गए, सारे कह रहे थे, बिलाल एक मरतबा वो अज़ान पढ़ के सुना दीजिए जो अज़ान नबी को सुनाया करते थे। हज़रत बिलाल ने माफ़ी मांगी। हज़रत बिलाल ने कहा, अब मेरे अंदर उतनी ताकत नहीं है कि मैं वो अज़ान सुना सकूं, वो अज़ान पढ़ने की ताकत मेरे अंदर नहीं है। इधर माँ की गोद में छोटे छोटे बच्चे कह रहे थे कि अम्मी भी ये बिलाल हबशी हैं जो मुअज्जिन रसूल थे। माएँ कहा करती थी, हाँ हाँ ये देख लो, ये आंखें वही आंखें हैं जिसने मुस्तफ़ा को देखा है, जिसने मुस्तफ़ा के जलवों को देखा है, इन्हीं का नाम बिलाल हबशी है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इतने में एक नौजवान लड़का दौड़ करके जो है कि मक्के मदीने की हद की तरफ जाता है, इधर से दौड़ कर जा रहा था तो मुस्कुराता हुआ गया था। कुछ देर के बाद जब वापस पलट कर आया तो आंखें अश्कबार थी, आंखें आंसू बहा रही थी। किसी ने पूछा था, वो नौजवान
नौजवान ये बता, जब तू इधर से जा रहा था तो मुस्कुराता हुआ गया था, लेकिन जब तू पलट कर वापस आया है तो तेरी आंखें आंसू क्यों बहा रही है? तब उस नौजवान बच्चे ने कहा था कि क्या बताऊं, जब आज बिलाल हबशी तशरीफ लाए थे तो मुझे उस वक्त का मंजर याद आ गया था जब मुस्तफ़ा जाने रहमत मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ ला रहे थे, तो उस वक्त भी गुलाम आगे आगे आए थे और मुस्तफ़ा जाने रहमत पीछे से तशरीफ लाए थे। तो मुझे ऐसा लगा कि जब गुलाम बिलाल हबशी तशरीफ ले आए हैं तो पीछे से आका तशरीफ लाते होंगे, लेकिन मुझे पता चला बाद में कि अब आका तशरीफ लाने वाले नहीं हैं, अब आका तशरीफ नहीं लाएंगे। इसी बात ने मुझे रुला दिया। इधर लोग हजरत बिलाल हबशी से कह रहे थे कि एक मर्तबा वो अजान पढ़ के सुना दीजिए। इतने में इमाम हसन और हुसैन को बुलाया गया। इमाम हसन और हुसैन ने कहा था चचा जान एक मर्तबा वो अजान सुना दीजिए जो अजान आप मेरे नाना को सुनाया करते थे। सबकी बातों को हजरत बिलाल ने ठुकरा दिया, लेकिन जब इमाम हसन और हुसैन ने कहा तो हजरत बिलाल ठुकरा ना सके। हजरत बिलाल ने अजान पढ़नी शुरू की है। जब अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पर हजरत बिलाल हबशी पहुंचे, आपने आंखें खोली है, हजरत बिलाल बेहोश हो गए। इससे पूछा गया हजरत बिलाल से, बिलाल तुम बेहोश क्यों हो गए थे? तो हजरत बिलाल ने जवाब दिया था कि जब मैं मुस्तफ़ा की जिंदगी में अजान पढ़ा करता था और जब मैं यहाँ पहुँचता था तो अपनी आंखें खोलता था, मुस्तफ़ा जाने रहमत का चेहरा सामने होता था, मुस्तफ़ा जाने रहमत मुस्कुराया करते थे। लेकिन आज जब मैंने यहाँ पर पहुँच करके अपनी आंखें खोली है तो नबी का जलवा नजर ना आया, बिलाल बेहोश हो गया। हजरत बिलाल हबशी हबशा वापस तशरीफ ले गए। हबशे में कुछ महीने तक जिंदगी आपने गुजारी। आखिर वो वक्त भी आया, हजरत बिलाल को दुनिया से रुखसत होने का वक्त करीब आया। एक दिन हजरत बिलाल ने अपनी बीवी से कहा था कि आज मुझे तैयार करो, आज मुझे गुस्ल दिलाओ। हजरत बिलाल हबशी को गुस्ल दिलाया गया। उसके बाद हजरत बिलाल ने कहा था कि मेरे लिए नया कपड़े लाओ। हजरत बिलाल को नए कपड़े दिए गए। हजरत बिलाल ने अपने सर में कंघी की है, उसके बाद आंखों में सुरमे लगाए हैं। हजरत बिलाल बिल्कुल तैयार हो गए। हजरत बिलाल की बीवी ने कहा था ओ बिलाल जरा ये तो बता, आज तक तूने जो है कि कई महीनों के बाद इस तरह से तैयारी करी है। ऐ मेरे सरताज, जब से आपके आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का विसाल हुआ है उसके बाद से आपने कभी ऐसी तैयारी ना की थी। उसके बाद आज पहली मर्तबा इस तरह तैयार हो रहे हो जिसके लिए आप सजा सवरा करते थे तो मदीने के अंदर रह गया है, लेकिन आज ये सजना सवरना किस बात के लिए है? तो हजरत बिलाल ने कहा था कि अब बिलाल को अपने आका के करीब जाने का वक्त करीब आ चुका है। बिलाल अपने आका के जलवों को देखने के लिए अब कब्र के अंदर जाने वाला है। जब हजरत बिलाल ने ये जुमला कहा था तो बीवी ने रो करके कहा था कि आपको इस बात की दुख नहीं है, आज के बाद से आपकी बीवी आपसे जुदा हो जाएगी, आज के बाद से आपके बच्चे आपसे जुदा हो जाएंगे, सारे लोगों के रिश्ते जो है सारे लोगों की मोहब्बतें आज से जुदा हो जाएगी। इन सारी बातों का आपका कोई परवाह नहीं है। तो हजरत बिलाल ने अपनी बीवी से कहा था अगर दुनिया की सारी मोहब्बत एक पल्ले में रख दिया जाए और मदीने वाले आका की मोहब्बत दूसरे पल्ले में रखी हो तो सारी मोहब्बतों को बिलाल ठुकरा देगा और मदीने वाले मुस्तफ़ा की मोहब्बत पर बिलाल कुर्बान हो जाएगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, न जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, अरे लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। यह हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु की दास्तान है। हिम्मत इस तरह से चुकाई जाती है, इसे आशिक कहते हैं। आज अगर हमें थोड़ी सी परेशानी या मुसीबत पहुंच जाती है तो हम अपने इस्लाम और ईमान का सौदा कर बैठते हैं। नहीं नौजवानों, मुसलमानों, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम तो कटने के लिए ही दुनिया में आए हैं। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता ना था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। इसलिए आपसे ये गुजारिश है कि ये बात आप अपने जहन के अंदर रखें कि जब तक ज़िंदगी है नबी के लिए गुजारी जाएगी, और जब इस दुनिया को छोड़ करके जाएंगे तो नबी की ग़ुलामी में मौत आनी चाहिए। कि बातिल से डरने वाले ऐ आसमां नहीं हैं, हम 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा, और कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, मुमकिन नहीं मिटाना नामो निशां हमारा। और यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, बाकी मगर है अब तक नामो निशां हमारा।